स्वर्ग से भी आज भूतल बढ़ गया, भाग्य भास्कर उदय गिरी पर चढ़ गया. And that is so true of the Sri Ram Nagari Ayodhya even as we speak. And I quickly want to cut across once again to these absolutely divine images of the Sri Ram temple at Ayodhya. The first image of the Sri Ram temple at Ayodhya after sundown. And I want to cut across to my colleague and friend Rahul Kanwal for more on this. Rahul, you are truly blessed being in Ayodhya at such an auspicious moment. You know, I was in Davos just till the day before, and because you had to be in the studio is actually the reason that I'm here, Gaurav. Because otherwise you would have been here covering this, but you know so much more about the scriptures, about our culture than anybody else in our newsroom. So you're anchoring live and we're doing these live hits. But I have our own resident Pandit Sanjay Sharma over here. Sanjay, हम लोगों ने वाराणसी की आरती कई मर्तबा देखी है, उसकी तुलना में ये बहुत छोटी है. हाँ, पर ये बहुत छोटी है, लेकिन अच्छी बात है कि शुरुआत हो रही है और कोशिश की जा रही है कि उसको भी उसी तरीके से बिल्डअप किया. बिल्कुल हाँ, यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो पुरानी परंपरा बहुत सूक्ष्म स्तर पे थी उसको बड़ा किया गया है, सरकार ने किया है. क्योंकि इसको एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी डेवलप किया जा रहा है और रिलीजियस प्लेस तो है ही. तो रिलीजियस और टूर इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत जबरदस्त है. जैसे हरिद्वार की आरती है या ऋषिकेश की आरती है, बनारस की आरती है, उसके तर्ज पर इसको विकसित किया गया है. ऐसे भी जो नदियों की आरती और पूजा है ये तो हमारा सनातन विषय है, लेकिन अब इसको ज्यादा भव्य और दिव्य रूप में यानी ग्लैमराइज करने की बात है. तो वो ग्लैमर अयोध्या. रिलीजन को ग्लैमर क्यों चाहिए संजय बाबू? रिलीजन को ग्लैमर इसलिए चाहिए कि नई पीढ़ी को ये बताने को कि नई पीढ़ी जिस जबान में समझना चाहती है उसको उसी जबान में समझाना चाहिए. अगर हम संस्कृत की चीजों में समझाएंगे तो उनको समझ में पल्ले कम पड़ेगा. उनको अगर हम पॉप की तरह, कल्चर की तरह हम समझाएं तो शायद गूढ़ बातें समझ में आ सकती हैं. जो नदियों की पूजा है, नदियों की आरती है, ये बताने का कि नदियों को संरक्षण करना है, कंजर्वेट करना है, इसको वो बताने के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं. कई बार कुनैन की गोली चाशनी में लपेट के खिलाई जाती है ताकि वो जल्दी असर करे. हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा is also here. He's in our Lucknow bureau. Abhishek, you're dressed for the part wearing bright gold with yellow hues. So you've seen how this aarti and the ghat has really been developed just in the past few months. Well, certainly, Rahul, and there has been a transformation in itself. This ghat used to never look like this before, and specifically in the last couple of years, if I talk about last 1.5 years, there's a lot of work happening, and this, this aarti which is happening right now has become an iconic part of Ayodhya culture, unlike the way we have seen it in Varanasi. And not just this Maha Aarti, Ram Ki Paidi, you must have seen how, they are doing the laser shows, it's happening, Deepotsava happening. So all these things have made this a world-class destination for tourism. Okay, so this is still being built. It's a work in progress. The aarti is beginning, and I want to go up now. So we'll try and show this live aarti, the first aarti that's being performed here on the banks of the river Saryu after the installation of the deity inside his new home at the Ram temple. And we'll try and capture this aarti live for you and also speak to some of the mahants who are here and who are with us at the temple premises when the consecration of the deity was being performed. सर, हमने आपको सुबह देखा राम मंदिर परिसर में, बहुत भावुक थे आप, बहुत उत्साहित भी. जिस तरीके से राम मंदिर का आज कार्यक्रम हुआ सुबह, आपके जहन में क्या क्या चल रहा? प्रभु के प्रेमियों, ये एक अद्भुत आनंद का विषय है. हम तो भाव विभोर हो गए. पुराने इतिहास, लाखों संत, लाखों भक्त लोग जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उनकी आत्मा अब संतों के मध्य में, योगी जी के, मोदी जी के हृदय में वही बुलवा रहे थे. मैं सुन रहा था जिस तरीके से मोदी जी को एक युग पुरुष या महापुरुष के तौर पे पेश करने की वहां पर बात चल रही थी. क्या आपको लगता है ये ठीक है, क्योंकि आखिरकार है तो पॉलिटिशियन? देखिए, आत्मा सभी बराबर हैं. आप इधर देखिए, आत्मा सभी बराबर हैं, परंतु अलौकिकोयम पुरुषः पुरातनः, ये प्रतिभा संपन्न किसी किसी प्राणी को ये प्रभु प्रदान करते हैं. तो हमारे सनातन संस्कृति के अनुसार
ये कोई न कोई विशेष परमात्मा की कृपा पात्र अंश है, अन्यथा हर व्यक्ति को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। ये प्रतिभा संपन्न है, आप में 100 आदमियों को कन्विंस करने की शक्ति है। अपने विषय का प्रतिपादन, अपने सब्जेक्ट को हर एक के अंतःकरण में बिठाना, ये प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं है। यहाँ पर पहले कभी इतनी रौनक नहीं हुआ करती थी सरयू की आरती पे, अब लग रहा है जैसे हरिद्वार में है या ऋषिकेश में है या वाराणसी में, वैसे ही होने वाली है। निश्चित रूप जितने भी आपके माध्यम से इस अयोध्या धाम का दर्शन कर रहे हैं वो सारे लोग सौभाग्यशाली हैं। तो रामलला आज विराजे हैं अपने भव्य दिव्य भवन में, इससे बढ़कर के अच्छा क्या हो सकता है। जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, राम राज्य कर सुख संपदा वर्ण न सके फणिस सारदा। भगवान राम राज्य के सुख की संपदा का वर्णन सहस्त्र फण से शेषनाग भगवान भी नहीं कर सकते हैं, माँ सरस्वती भी नहीं कर सकती है। तो निश्चित रूप से आज तो वो अद्वितीय दिन आ ही गया है जब हम सारे लोग भगवान श्री राम को अपने भव्य दिव्य भवन में देख रहे हैं। तो आज से अयोध्या का परिदृश्य ही बदल गया। अयोध्या ही नहीं, पूरे विश्व का सनातन धर्म को मानने वाले जहाँ तक लोग हैं, सारे लोगों के आज भाग्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम हो, आप हो, सारा संसार हो। तो ये आरती तो हमने वर्ष 2017 में शुरू की थी, लेकिन ये आशा थी कि भगवान कब विराजेंगे। तो 2017 में योगी जी ने दीपोत्सव के माध्यम से बतला दिया था कि भगवान अब आने वाले हैं, भगवान आने वाले हैं। तो उसी की प्रतीक्षा में हम सारे लोग लगे थे। आज आप और हम सब आपके माध्यम से पूरा भारतवर्ष देख रहा है। हम भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे भगवान श्री रामलला अपने भव्य दिव्य विराजे हैं। बहुत खूब। आपके लिए सर आज के दिन की, इस मौके की क्या अहमियत है? देखिए, सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के आज हमारे पुण्य उदय हुए हैं और माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद हुआ है जो हम सब श्री अयोध्या धाम में पधारे हुए हैं। और आज 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कर दिया है। और आज जैसे राजा रामचंद्र भगवान जब आए थे पूरे राम के साथ, जब आए थे राजा रामचंद्र भगवान, उस समय दीपोत्सव हुआ था पूरे विश्व में। आज मानो ऐसा हुआ है कि जैसे फिर पुनः राम राज्य की स्थापना कर दिया है मोदी जी ने और योगी जी ने। नीला मुजस्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। ऐसे रघुवंशी, ऐसे राजा रामचंद्र भगवान आ चुके हैं। ये हम सब का बड़ा सौभाग्य। और ये देखिए कितना सुंदर नजारा है, यहाँ भव्य सरयू की आरती हो रही है। आप सब भी दर्शन करेंगे, आज तक के माध्यम से बड़ा ही सुंदर लाइव हो रहा है। और मैं आचार्य उन्नीस भाई जी श्रीधाम वृंदावन से बहुत ही आप सबको राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अयोध्या से आज हमारे रामलला विराजमान हो चुके हैं। अब भैया मथुरा अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजाएंगे और मथुरा अभी बाकी है। जय जय श्री राम।